हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। Hare Krishna, Danvat Pranam Vasant Prabhu, Braj Prakash Prabhu. Danvat Pranam Keshavanand Prabhu, this is Tapan Mishra Das. It's such a pleasure to have your association here today, Prabhuji. Oh, you're in Kuwait? Prabhu, no, I'm in Sridham, Mayapur. Yeah. Oh, so you're relaying from there. Okay. That's right, Prabhuji. I'm relaying from there. And on behalf of all the devotees in Kuwait, we would like to welcome you, Prabhu. First of all, expressing our thank you for accepting to address all of us. The devotees in Kuwait, for a long time, they had a desire to have your association. And we were always trying to find out what is the best way to have your association and invite you to Kuwait. And now it's come to this, that we at least get your association on Zoom. ब्रज प्रकाश प्रभु, आप साथ साथ में अनुवाद करेंगे या आप हिंदी में फिर जी प्रभु। जी प्रभु, तो हम सब बहुत आभारी हैं श्रीमान केशवानंद प्रभु जी के। प्रभु जी बता रहे हैं कि हम बहुत प्रभु जी का संग चाहते थे कि कुवैत में प्रभु जी आकर के और हमें अपना संग प्रदान करते। हम सबकी इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया, और इस वजह से अभी हम लोग जूम पे कम से कम प्रभु जी का संग प्राप्त करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और and I mean, much can be said about Prabhu and His Grace Keshwanand Prabhu. By qualification, he's a professional doctor, and for many years, for decades, Prabhu has been conducting extensive research and has written several books in the field of science and spirituality. तो श्रीमान केशवानंद प्रभु वैसे वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और उन्होंने कई दशकों से, पिछले कई दशकों से जो है बहुत अनुसंधान किया है विज्ञान और आध्यात्म के ऊपर सामंजस्य में। And Prabhu has specifically worked towards, bridging the gap between spirituality and science and superstition and myth in such a way that people can get a God-conscious, Krishna-conscious perspective of reality. और उसमें जो भेद भी है विज्ञान और अध्यात्म में, उनके अंतर को दूर करके, उसको सामीप्य को ला करके, और भी जो अंधविश्वास है उसको भी दूर करके बहुत सामंजस्य स्थापित किया है प्रभु जी ने अनुसंधान के द्वारा। Prabhu has very kindly compiled various Sanskrit sutras of the Vedas and the Bhagavad Gita, thereby offering a new approach to bridge such a gap. और कई ऐसे भगवत गीता और अन्य शास्त्रों से उन्होंने संस्कृत सूत्रों के द्वारा इस सामीप्य को समीप लाया है, इन दोनों के अंतर को। Prabhu has learned many languages, of course, Hindi, English, besides this Sanskrit, Bengali, Gujarati, Marathi, and Kannada, to know more about the traditions in each of these places as well. और प्रभु जी कई भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया अभी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, और भी जो भाषाएं अभी मैं सुन नहीं पाया, प्रभु जी ने बताया, उन भाषाओं के द्वारा प्रभु जी वहाँ के जो उनका विचारधारा है उसको समझने का प्रयास किया एक साथ मिलाने के लिए। Prabhu is an avid presenter of seminars across the world. He has traveled quite a bit, India, Europe, America, and many places, and many of us have benefited from Prabhu's seminars on various topics. और पूरे विश्व में कई देशों में जाकर के प्रभु जी ने जो है बहुत सुंदर सेमिनार प्रस्तुत किए हैं, और हम में से कई लोगों ने उसका सौभाग्य प्राप्त किया है उस सेमिनार को अटेंड करके। Prabhu has also established a traditional Vedic Gurukul in Punjab. और गुरुकुल में उन्होंने एक बहुत ऐसे पंजाब में एक गुरुकुल की भी स्थापना की है जो कि इस विचारधारा पर स्थित है। And Prabhu has written many books as well. He has compiled several books. और कई पुस्तकों के रचयिता भी हैं प्रभु जी। Prabhu has written in Hindi Guru Kaun, Gita Sar Ki Talwar, and in English Cheater and the Cheated. तो गुरु कौन और गीता सार की तलवार हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में ठग और ठगी, तो ऐसी भी पुस्तक उन्होंने लिखी है। Science fails to explain life, crazy ideas. Some of these are Prabhu's books in English.
और विज्ञान के ऊपर और कैसे जो है उन्मत्त लोगों के विचार हैं इस प्रकार से, उस पर भी पुस्तकें लिखी हैं प्रभु जी। Prabhu is, as you can all notice, Prabhu is a brahmachari and he's a initiated disciple of His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. और अभी वो एक प्रभु जी ब्रह्मचारी हैं और परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्य हैं। I sincerely pray and hope and beg Prabhu that this would be one in the many associations and seminars that he will guide the devotees in Kanhaiya Desh with. तो हम प्रार्थना करते हैं और ये आशा करते हैं कि उनके कई सेमिनार में से एक ऐसा होगा जिसमें हम सब कन्हैया देश के भक्तों को बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। And there's a high likelihood, Keshwanand Prabhu, that some other devotees from GCC will also join this seminar, because I had sent the invitation. From the other Gulf countries may join the seminar, because I had circulated the invitation to the leaders there, and especially Varada Gopal Prabhu immediately expressed his appreciation for your seminars and your inspiration in Balram Desh. तो सब कि अन्य भी देशों के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर अभी अन्य खाड़ी देश के लोग हैं वो भी सम्मिलित होंगे। विशेष रूप से बलराम देश बहरीन से जो भक्त हैं वहाँ श्री बदराज प्रभु उन्होंने प्रभु जी के लिए प्रशंसा और सम्मान भेजा है और उनके वो बहुत ही आशान्वित है कि वो भी यहाँ पर अभी सम्मिलित होंगे। वरद गोपाल प्रभु, केशवानंद प्रभु वरद गोपाल प्रभु बोल रहे थे। वरद गोपाल प्रभु, ओके। हाँ जी, हाँ जी। अभी पिछले कुछ महीने पहले ना जो सुमद्र चैतन्य प्रभु थे पहले अध्यक्ष, अब वरद गोपाल प्रभु अध्यक्ष हो गए हैं वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष। So with this an offering my danvats to Prabhu and to all the Vaishnava devotees, I'll hand over to Prabhu to please lead us through the seminar. Braj Prakash Prabhu, you can please add something if you like to add. धन्यवाद प्रभु जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी की, जैसे आपने बताया, और हम सब प्रभु जी के संग के अभिलाषी हैं और हम सब, हमारा सौभाग्य है कि आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी बहुत सम्मान से प्रभु जी का ये संग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. Prabhu, this I'm supposed to speak in English, or like what's happening? Like the English audience and Hindi both audience are there, or what? Yes, Prabhu, we have mixed. I will just ask Prabhu, maybe because majority in Hindi speaking, Prabhu. So I'll just report this. So if there is anyone who cannot understand Hindi, otherwise we can get more time. If Prabhuji just speak in one language, we can get more time actually and more association, more katha we can hear. अगर सब लोग सहमत हैं तो क्या हम हिंदी में सुन सकते हैं? If anybody cannot understand Hindi, they can raise their hand. And yes, if there are at least a few hands, then we will change language. Otherwise, sorry, Prabhuji. Hindi preferred, Prabhu. So far, no hand raised, Prabhu. तो हम लोग सबकी सहमति से हिंदी में श्रवण कर सकते हैं, तपनीश प्रभु जी? हाँ बिल्कुल, अगर प्रभु के लिए सुविधा है तो प्रभु से निवेदन करेंगे हिंदी में बोल देंगे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हिंदी में। तो प्रभु जी फिर प्लीज शुभ शुरुआत करिए आप और आशीर्वाद के देते हुए हम सबको। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, सो दिस इज गुड। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कृपा और प्रयास। सो हम इस पे डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं मंगलाचरण बोलता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो टॉपिक है कृपा और प्रयास, इस मतलब टॉपिक तो बहुत आसान लग रहा है सुनने में, टॉपिक तो बहुत आसान लग रहा है सुनने में, मगर इस टॉपिक को लेके हमारे इतिहास में बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। और इनफैक्ट
खून खराबे भी हो चुके, लिटरली खून हो चुका है लोगों का, कई हजारों लोग मर चुके हैं इस टॉपिक को लेके, डिबेट्स हो चुकी हैं, वाद विवाद हो चुके हैं। कृपा और प्रयास, और क्या वाद विवाद हुआ है, क्यों लड़ाई हुई है? पॉइंट ये है कि कुछ लोग कह रहे थे कि, या कुछ दल या कुछ पक्ष कह रहे थे कि कृपा इम्पोर्टेंट है भगवान की ज्यादा, और कुछ लोग कह रहे थे प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी में झगड़ा। अब आप कहोगे कि इसमें क्या झगड़े की बात है, छोटा सा तो बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कृपा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रयास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपना बैठ के ठीक है, उसको वो बोलने दो, हमें बोल रहे हैं मतलब हिंदू चीनी भाई भाई, और आराम से सेवा करते रहो, क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी तो बात है, बट छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी बात से ही पूरी साधना बदल जाती है। हो सकता है साधना का प्रोसेस नहीं बदले, बट जो साधना करने का जो भाव है वो पूरा बदल जाता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री वैष्णव संप्रदाय में 2 सेक्ट हैं, तेंकलाय और बड़कलाय। श्री वैष्णव साउथ इंडिया में एक वैष्णव संप्रदाय सेक्ट है, मोस्टली उनका हेडक्वार्टर श्रीरंगम में है, और मैसूर मेलकोटे में भी है। सो वहां पे श्री वैष्णव 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक है बड़ा कलाय और दूसरा पक्ष है तेंकलाय। अब जो तेंकलाय वाले कह रहे थे कि भाई भगवान की कृपा ही सबसे महत्वपूर्ण है, जीव के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं। तेंकलाय, और जो बड़ा कलाय है, बड़ा कलाय वाले कह रहे थे नहीं नहीं, भगवान की कृपा तो है मगर प्रयास हमें करना है, वरना कृपा आएगी कैसे? अब ये पॉइंट छोटा सा है, बट दोनों की साधना पद्धति अलग हो गई। बाहर से शायद दोनों रामानुजा को की प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र सब वही थे, वेद वही पढ़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जो तेंकलाय वाले हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा पे ज्यादा निर्भर थे और प्रयास पे ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो अपनी साधना में उन्होंने कहा कि देखो साधना में नियम तो है, मगर नियम इतने कड़े तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा वेदों का ज्ञान समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं होता। बस भगवान को पुकारो हृदय से, और कृपा से होगा तो भगवान प्राप्त। तो साधना बदल गई, फोकस बदल गया, फोकस बदल गया। तो तेंकलाय संप्रदाय का जनरली फोकस है भजन्स पे, भजन्स गाना, गीत गाना। और जो वड़ा कलाय उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रयास से ही सब कुछ हो, प्रयास ही है। तो उनकी साधना में उन्होंने कहा प्रयास है, तो फिर हमें रूल्स अच्छी तरह फॉलो करने चाहिए, नियम अच्छी तरह फॉलो करने चाहिए। कृपा तो है ही, मगर नियम फॉलो करने चाहिए, कभी मत तोड़ो, और ज्ञान लो अच्छी तरह, सिद्धांत समझो। तो ये साधना का फोकस बदल गया। साधना तो मंत्र और सब कुछ वही था, बट फोकस की बात होती है, और उसमें उनकी लड़ाई हो गई और खून खराबी भी हुई। तो ऐसे ही श्री संप्रदाय में, ऐसे ही यही चीज इस्लाम में भी है, यही चीज क्रिश्चियनिटी में भी है, यही चीज चाइनीज रिलीजन में भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ वैष्णविज्म की प्रॉब्लम नहीं है, सारे पंथों में, सारे धर्मों में ये प्रयास और कृपा में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेके झगड़े ही हैं, और लोग लड़ते ही रहते हैं, और उससे उनकी साधना में फर्क पड़ता है। सो इसलिए हमें हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा हमारा क्या स्टैंड है, गौड़िया वैष्णवों का क्या स्टैंड है, हम महाप्रभु का अनुयायी हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं इसमें, और ये समझ के हम साधना अच्छी तरह कर पाए, सबसे इम्पोर्टेंट ये। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कृपा, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा प्रयास, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कृपा और प्रयास के बीच में संबंध। सो सबसे पहले हम कृपा डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कृपा। सो जब भगवान की कृपा की बात करते हैं तो भगवान की कृपा कहाँ है?
कहाँ है, मतलब सिर्फ मंदिर में है या किताबों में है या पूरी सृष्टि में है? कहाँ है? दिखाई तो देती नहीं। किस रूप में कृपा मिलती है और कहाँ है? तो ये सारी बातें डिस्कस करने वाली बातें हैं। बट भगवान की कृपा कहाँ है? इसको समझने के लिए श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह 2:10-12 सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं द्रव्यम कर्मश्च कालश्च स्वभाव जीवैव च यद अनुग्रतः सन्ति न सन्ति तत् उपेक्षय। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृपा पहले ही दे चुके हैं और इतनी कृपा दे चुके हैं कि आप अगर समुद्र को भी उससे कंपेयर करो तो वो भी एक छोटा सा बस एक छोटा सा चुल्लू भर का पानी बन जाए उसके सामने। भगवान की कृपा इतनी अनंत है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने हमें अपनी कृपा कई रूपों में दी है और दे चुके हैं अनंत जीवों को। किस रूप में? द्रव्यम मतलब होता है संसार की चीजें, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पेड़, फूल, पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सारी कृपा ही तो है। और क्या है? हमारा शरीर, ये सारी चीजें द्रव्य तो बनी है, चीजों से तो, मेटेरियल एलिमेंट से बनी है। तो भगवान की कृपा ये सब भगवान का ही तो है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि एक वैष्णव, चाहे गाय हो, चंडाल हो, कुत्ता हो, आकाश हो, तारे हो, पृथ्वी हो, पेड़ पौधे हो, सबको आदर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है सब में भगवान का वास है। क्यों? क्योंकि सब भगवान का शरीर है। कहने का मतलब है कि सब भगवान की कृपा से ही प्रकट हुए, भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है। सब कृपा ही तो है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक उच्च भक्त भगवान की आरती कैसे करता है? भगवान की आरती कर एक उच्च भक्त, एक महाभागवत के लिए भगवान की आरती का जो प्लेट है वो है आकाश, तो उसमें दिया है वो है सूर्य, और उसमें फूल है वो है अनेक तारे, और जो उसमें जो सुगंध है वो है चंद्रमा की चांदनी, और उस पूरे ब्रह्मांड से भगवान की आरती। ऐसी भी दृष्टि होती है, ये महाभागवतों की दृष्टि। कहने का मतलब है वासुदेवम सर्वमिति। एक भक्त सब चीजों में द्रव्यम भगवान की कृपा देखता है, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान ने सबको ही दी है, किसको नहीं दी? द्रव्यम, और बिना पूछे, बिना मांगे, किसी ने नहीं मांगी बट फिर भी भगवान ने दी। द्रव्यम कर्म, भगवान ने सबको शक्ति दी है कि वो कुछ काम कर पाए, सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो कुछ कर पाए, अपनी इच्छाएं पूरी कर पाए। भगवान की कृपा ही तो है, ये दे चुके हैं भगवान। काल, समय, भगवान की बहुत कृपा है कि भगवान समय के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, और समय के रूप में प्रवेश करके भगवान इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, बिना समय के तो प्रवृत्ति तो ये संसार चलेगा ही नहीं। संसार ही नहीं चलेगा तो हम करेंगे क्या? और भगवान की अगर भक्ति भी प्राप्त करनी हो तो कैसे करेंगे? लोगों को जो भोग प्राप्त करना हो कैसे होगा? सब कुछ पॉज हो जाएगा। वो भगवान की कृपा है। भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं। स्वभाव यहाँ पे मतलब है 3 प्रकृति गुण। भगवान 3 गुणों के रूप में प्रकट होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और उस तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी करने में उनकी मदद करते हैं। जैसे कोई खराब आदमी है तो भगवान उसको तमोगुण में रखते हैं कि जिससे वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो गंदा आदमी है भगवान उसको रजोगुण में रखेंगे कि जिससे वो अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी कर पाए, उसको प्रेरणा मिले पूरी करने। जो अच्छा आदमी है उसको सतोगुण में रखेंगे कि जिससे वो अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त हो। स्वभाव और जीव और आत्मा भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं
ये 5 चीजें जो सबको दी हैं भगवान ने। ये भगवान के अनुग्रह, यद अनुग्रहतः सन्ति, भगवान के अनुग्रह पे निर्भर है। अगर भगवान उपेक्षा कर देंगे, अपना अनुग्रह हटा देंगे तो सब कुछ खत्म। सो 2, 10, 12 ये कृपा भगवान सबको दे चुके हैं, इसलिए ये कृपा पहले से ही है, हमारे बिना मांगे भी। मगर कुछ कृपा होती है जो भगवान मांगने पर देते हैं, और वो भी केवल अपने भक्तों को। ये कृपा तो सबके लिए है, भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए, सबके लिए। कुछ कृपा केवल भक्तों के लिए ही है, और वो कृपा भगवान भक्तों को मांगने पर देते हैं। तो गीता में श्लोक है 9.29, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए न मैं द्वेष हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। जो मुझसे द्वेष करता है मैं उससे द्वेष नहीं करता। न प्रियः, और मैं कभी भी किसी किसी को प्रेम करने के चक्कर में नियम को नहीं तोड़ता। ऐसा कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है मेरे लिए जिसके लिए मैं नियम तोड़ दूंगा। एक एक जनरल सेंस में बोल रहे हैं, न प्रिय, मतलब मैं किसी को फ्लैटर नहीं करता, कहने का मतलब मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। मैं जस्टिस करता हूँ, न्याय करता हूँ और कृपा देता हूँ। सब समान, समम सर्वभूतेषु, समान रूप से कृपा देता हूँ। ऐसे नहीं किसी को कम दी, किसी को ज्यादा दी, कि मुझे प्रिय तो मैं ज्यादा दूंगा। सूरज सबके लिए, चांद सबके लिए, आकाश सबके लिए, शरीर सबके लिए, प्रकृति के 3 गुण सबके लिए है, काल सबके लिए है। सभी अपना काम कर रहे हैं, सबको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अपना कर्म करने के लिए, सबके लिए समान है। बट ये भजन्ति तो माम भक्त्या, मगर जो मेरी भक्ति करता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उसकी भक्ति करता हूँ। कहने का मतलब है जो मुझसे मांगता है, जो मेरा भक्त है, जो मेरी सेवा करता है, अगर वो मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा। कैसे? उसकी इच्छा पूरी, बस काम खत्म हो गया। सो भगवान ने कुछ कृपा तो सबको दी है, मगर कुछ कृपा अपने डिवोटीज के लिए रिजर्व करके रखा। तो भक्त क्या मांगते हैं भगवान से? भक्त भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें प्रेम दीजिए अपने चरणों का। दास करी प्रेम वेतन देह, मुझे अपना दास बना के मुझे प्रेम दीजिए अपने वेतन के रूप में, पे के रूप में। जैसे आप लोग को दिनार विनार मिलती है काम करने के लिए, तो ऐसे ही भगवान हम सेवा करते हैं। भगवान हमें क्या चाहिए? हमें प्रेम चाहिए। हमारा टारगेट प्रेम। प्रीति साधे भवेत साधे भाव, भाव है हमारा प्रेम साधे, राग है, प्रीति है, ये हमारा टारगेट। आसक्ति है, ये टारगेट। सो हम ये मांगते हैं भगवान से। सो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त है, मैं इसको जरूर दूंगा। सो और बल्कि प्रेम, बल्कि भक्त तो भगवान को ही मांग लेते हैं। जैसे गोपियों ने कहा कृष्ण हमें तो आप ही चाहिए। उद्धव आए गोपियों के पास वृंदावन में। उद्धव ने कहा कि गोपियों भगवान का स्मरण करो। गोपियों ने कहा कि स्मरण तो छोड़ दो, हमें कृष्णा ही चाहिए बस। स्मरण तो बहुत दूर की बात है। स्मरण करना भी कैसे? स्मरण तो मन से होता है ना। हमारा मन ही भगवान हरि चुरा के ले गए, हर के ले गए। मन ही हमारे पास नहीं तो स्मरण क्या करें? आप उनको ही बुला दो बस। सो इसीलिए एक भक्त के लिए भगवान की स्पेशल कृपा रिजर्व होती है, मगर वो कृपा तभी देते हैं जब वो मांगता है। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, जब वो सेवा करता है और वो इच्छा करता है कि वो मिले तो भगवान देते हैं, मगर रिजर्व रखते हैं। तो यूं समझ लीजिए कुछ कृपा अनरिजर्व्ड है, मतलब जनरल कंपार्टमेंट है। जनरल कंपार्टमेंट में कोई भी जा सकता है, सबके लिए। कुछ कंपार्टमेंट रिजर्व होते हैं, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कुछ रिजर्व होते हैं। तो वो रिजर्व्ड कृपा है। किसके लिए? भक्ति के लिए। ये भजन्ति, भक्त के लिए। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, जब वो मांगेंगे तो दे देंगे। ऐसे प्रेम और उसके बाद आसक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, आसक्ति और भगवान खुद। भक्त मानते हैं भगवान अपने चरणों में आसक्ति दीजिए, फिर उसके बाद मांगते हैं भगवान प्रेम दीजिए। इसके बाद कहते हैं कि भगवान अब
आप अपने आप को ही दे दीजिए। सो अपने आप को ही दे दीजिए। तो इसीलिए डिवोटी भगवान को ही मांग लेता है तो भगवान दे देते हैं, मगर ये रिजर्व्ड है कृपा भक्तों के लिए जो भगवान मांगने पर देते हैं। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, कृष्णा कह रहे हैं, इफ यू वांट मी आई विल गिव माय सेल्फ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं दे दूंगा, तुम चाहो तो सही, मैं देने को तैयार हूं। बट दूसरी तरफ अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसी कृपा भगवान रिजर्व करके रखते हैं जो बिना मांगे भी दे देते। ऐसी भी कृपा है रिजर्व जो बिना मांगे मिलना। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अब जो स्लीपर क्लास है उसमें तो रिजर्वेशन चाहिए ना, अब रिजर्वेशन कराओगे तब जाओगे। जनरल कंपार्टमेंट में कोई भी आ सकता है, तो बट आप स्लीपर कंपार्टमेंट में जाओगे अंदर या फर्स्ट क्लास में, तो आपको कुछ पानी की बोतल और न्यूज़पेपर फ्री मिले, जनरल कंपार्टमेंट में नहीं मिलता। सो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों पे जो कृपा करते हैं वो रिजर्व्ड होती है, वो मांगने पे देते हैं। और कैसी वो कृपा किस रूप में आती है? प्रेम के रूप में, आसक्ति के रूप में, और भगवान खुद अपने रूप में देते हैं, खुद ही। मगर कुछ कृपा होती है जो बिना मांगे भी देते हैं अपने भक्त, कि खुद से देना चाहते हैं। भगवान ऑल मर्सीफुल, वो कैसी कृपा है? जैसे उदाहरण के लिए भगवान अपने भक्तों के अपराध खुद से माफ करते हैं। जो भगवान के प्रति अपराध हो रहे होते हैं भगवान माफ, चलो माफ। जैसे भगवान भक्तों की फैमिली, भक्तों को जो साधारण जीवन में जरूरत होती है खुद ही पूरी, वो मांगने की जरूरत नहीं होती ना। डिवोटी इंटरेस्टेड है मांगने, भक्त चाहता भी नहीं फिर भी भगवान दे देते हैं भक्तों के लिए। ये भगवान है, भक्त चाहता भी नहीं तब भी देते। सो उसकी फैमिली की, उसकी भौतिक, उसकी मटेरियल नेसेसिटीज भगवान पूरी कर देते हैं। भगवान उसकी छोटी सेवा को बड़े से बड़ा करके उसका फल दे, ये खुद से कर देते। सो भगवान अपने भक्तों के दुश्मनों को खुद से मारते हैं। चाहे भक्त अपने दुश्मनों को माफ भी करते, भगवान कहते हैं नहीं मैं मार। जैसे पांडवों, द्रौपदी, दुर्योधन उनके दुश्मन थे। दुशासन, भगवान ने कहा मैं तो मारूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया। अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा ठीक है। प्रभुपाद लिख रहे फर्स्ट चैप्टर में, भगवान ने कहा अर्जुन तुम मत लड़ो, मैं कहा मैंने डिसाइड किया मैं मारूंगा क्योंकि इन्होंने तुम्हारे प्रति अपराध किया। सो भगवान खुद से कृपा देते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि कृपा जो है तीन रूपों में आती है जीवों में, तीन रूपों में। पहला है एक जनरल कृपा जो सबको भगवान देते हैं, जो अहेतु की है, कोई हेतु नहीं है उसका, भगवान का कृपा देने का तो कोई हेतु नहीं होता, तो सबको दे देते हैं। वो जनरल कृपा किस रूप में आती है? द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, 5 रूपों में आती है। श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 10th चैप्टर 12th वर्स। और कुछ कृपा अपने भक्तों के लिए रिजर्व, और जो भक्तों के लिए जो रिजर्व्ड है उसमें कुछ कृपा भगवान मांगने पे देते हैं, दूसरी तरह की। तो कुछ कृपा भगवान मांगने पे देते हैं। और वो कैसी कृपा है? प्रेम, आसक्ति, और भगवान अपने आप को खुद मांगने पे ही देते हैं। सो वो ऐसी कृपा है। और कुछ कृपा है जो, तो इसका एक एग्जांपल है समम सर्वभूतेषु ये न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये विशन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, 9 चैप्टर 29। और कुछ कृपा जो भक्तों के लिए रिजर्व्ड है वो भगवान बिना मांगे दे देते हैं, अपने मन से देते हैं। तो ये 3 तरह के रूप में भगवान की कृपा आती है जीवों। ओके, तो चलो कृपा के बारे में बात हुई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर भगवान की कृपा ही सब कुछ है, भगवान कृपा से अपने भक्तों को, भगवान की ही कृपा से हम भक्ति में आते हैं,
एक डिवोटी थे कनकदास, एनीवे इस पॉइंट को बताने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ। एक डिवोटी थे कनकदास, तो वो तिरुपति गए मध्वा संप्रदाय के, तो उन्होंने वहां पे सॉन्ग गाया। एक्चुअली वो तिरुपति में तो बहुत बड़ी लाइन होती है दर्शन की, तो उनको दर्शन मिल नहीं रहे थे, इतनी बड़ी लाइन, तो वो बाहर ही बैठ गए, वहां पे सॉन्ग गाने लगे और उन्होंने सॉन्ग गाया कि भगवान अगर आप मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे, अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं सबको बताऊंगा कि आप भगवान नहीं है, मैं आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। Now that's what कनकदास said. कनकदास ने ऐसा बोला, मैं आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सो कनकदास जो थे वो कृपा की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि तो भगवान ने कहा ये कैसी बात हो गई, तो कनकदास ने कहा कि भगवान आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरा छल किया, आप मुझे भक्ति में लेके आए, मैं तो नहीं आना चाहता, आपने अपने भक्त भेजे, मुझे प्रचार कराया, मुझे लेके आए, आप मुझे भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं अपने भक्तों का संग देकर, ये भी कृपा है, प्रसाद देकर, शास्त्र देकर आप मुझे भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, और आपने मुझे भक्ति में रखा हुआ है, मैं तो भागना चाहता हूँ मगर आप नहीं रखा हुआ है। तो जब आप मुझे यहाँ तक लेके आए हैं पकड़ के, तो अपने पास भी पहुंचाने वाले आप ही तो होंगे, मुझे बीच में क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ तो लाते ही नहीं, बीच में क्यों छोड़ के जा रहे हैं। कनकदास का आर्गुमेंट, यू सी। सो पॉइंट ये है कि भगवान ही अपनी कृपा से हमें अपने पास लेके आते हैं, अपने भक्तों को बेचकर बार बार, और हमें पुष्ट करते हैं अपनी कृपा से भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। मगर तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे प्रयास की क्या जरूरत, बस भगवान की कृपा पर निर्भर रहो और भगवान आगे बढ़ा देंगे हमें भक्ति में। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बस भगवान की कृपा प्रार्थी रहो, भगवान की शरण में रहो और भगवान अपने आप आगे बढ़े, ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस बच्चे की तरह भगवान की शरण, यही कहते हैं। मतलब जितने भी सहजिया लोग हैं वो भी यही कहते हैं, ज्यादा नियम ज्यादा प्रयास की क्या जरूरत। बट प्रयास की जरूरत है, बाय द वे। क्यों? दो कारण, दो कारणों से प्रयास की जरूरत। हम भी समझते हैं कृपा सब कुछ है, हम भी समझते हैं कि कृपा की वजह से हम यहाँ पे बैठे, हम भी समझते हैं कि भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में, वैष्णव के रूप में, शास्त्रों के रूप में, तुलसी के रूप में, अपने अर्च विग्रह के रूप में, भगवान की सब जगह कृपा है। हम ही समझते हैं भगवान की कृपा से ही हम आए हैं, भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी प्रयास की जरूरत है। क्यों? उसके दो कारण है। पहला कारण है उस कृपा को पकड़ के रखने की। सो भगवान तो यहाँ पे ले आए हैं और भगवान ने हमें पकड़ा भी हुआ है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम इतने गंदे हैं कि हम हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, सिर्फ माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा ही हुआ है और उसको चलाती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा इतना गंदा है कि वो हाथ छुड़ा के भाग। सो कृपा तो है भगवान की, मगर उसको पकड़ के भी रखना हो। तो इसका एग्जांपल लेते हैं रोप। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोप और वेल का देते हैं, कुएं का। तो कुएं में आपने रस्सी डाली और रस्सी आपने डाली और एक आदमी गिरा हुआ है, आपने कभी रस्सी पकड़ ले, तो मैं खींच लूंगा। तो आपने डाली, उसने पकड़ी है, आप खींच रहे हो, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको पकड़ के रखनी रस्सी। अब वो छोड़ देगा रस्सी तो हम क्या करेंगे? रस्सी भी सही है, खींचने वाले भी सही है। तो वो खींचने वाले भगवान है और वो रस्सी कृपा है, और जो हमने पकड़ के रखा है वो प्रयास। हमें पकड़ना, हमें चढ़ना नहीं है, खींचेंगे वो। सो उस कृपा को पकड़ के रखना होता है। भगवान कहाँ कह रहे हैं? फेमस वर्ड्स भगवद गीता 18वां अध्याय 66 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकाम शरणम व्रज। भगवान कह रहे मेरी शरण लो, मुझे पकड़ के रखो। शरण मतलब मुझे पकड़ के रखो, मेरी कृपा को पकड़ के रखो। कैसे पकड़ो? अपने प्रयास से। उसमें प्रयास लगता है कृपा पकड़ने में। क्यों? क्योंकि जब हम पकड़ के रखेंगे भगवान की कृपा, तो हमारा मन कहेगा छोड़ दो। हमारा मन कहेगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाएं आपको कहेंगी छोड़ दे, छोड़ दे। क्या पकड़ा हुआ है? उसको रोकना पड़ता है मन को, अपनी वासनाओं को रोकना पड़ता है, कि उनकी बातों में बहल के हम छोड़ ना दें, और कृपा छोड़कर संसार को ना पकड़, तो वो रेजिस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रयास चाहिए। तो वो अपने अनर्थ हटाने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको रेजिस्ट कैसे कहेंगे हिंदी में? अपने अनर्थों को, अपने सॉरी अपने अपनी वासना, हाँ, तो अपने वेगों को वो सहने के लिए, कि वो हमें पकड़ के इधर उधर ना ले जाए और हम कृपा छोड़ के कुछ और संसार ही पकड़ लें, उसके लिए प्रयास चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए माइंड का। सेंस, क्षमा, दमा, तपा, शौचम, सेंस कंट्रोल चाहिए, माइंड कंट्रोल चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए। तो प्रयास है वो। और उस कृपा को पकड़ के रहने के लिए हमें भगवान को भी हमें समझना पड़ेगा कृपा है क्या चीज है। कृपा और भगवान को भी समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम कहेंगे इससे इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, छोड़ छाड़ के कुछ और पकड़ लेंगे। तो उसके लिए भी प्रयास चाहिए, भगवान को समझना, उनका ज्ञान लेना, कृपा कृपा का स्वरूप समझना, कृपा है क्या, किस रूप में आ रही है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, पहचानने के लिए। तो इसलिए कृपा को पकड़ने के लिए प्रयास चाहिए। सो ये पहला कारण है, कृपा को पकड़े रहो, कृपा छोड़ के संसार को मत पकड़ लेना, या अपने आप को मत पकड़ लेना कृपा छोड़कर, अपने अहंकार को मत पकड़ लेना। सो इसलिए ये पहला कारण है, प्रयास की जरूरत क्यों है। भाई गाड़ी तो आपकी चल रही है फुल स्पीड पे, ड्राइवर भगवान ही है, आप बैठे हो, मगर भैया रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो हटाने तो पड़ेंगे ना। अब इतने बड़े पत्थर हैं, आपको उतर के हटाना ही पड़ेगा, खुद ही हटाना पड़ेगा, क्या करोगे, कोई है ही नहीं आसपास। ड्राइवर भी हेल्प कर देगा, मगर हटाना तो आपको ही पड़ेगा, इतना बड़ा पत्थर कैसे हटेगा सिर्फ ड्राइवर। सो वो आपको हटाना पड़ेगा, आप साफ करते रहो, और ड्राइवर को कहो भाई तू चलाता रहे, धीरे धीरे मैं हटाता रहता हूँ, तू धीरे धीरे चला, मैं हटा रहा हूँ, वो चलाते रहेंगे गाड़ी। तो उसमें प्रयास लगता है। समझे? अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब सारे कंकड़ पत्थर हटाना उस रोड से, और अर्थ प्रवृत्ति अपने लक्ष्य को समझना। तभी तो आप गाड़ी स्पीड से चलाओगे। अगर आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो धीरे धीरे चलाओगे, भाई पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करूँ, स्पीड आएगी नहीं। स्पीड तो तभी आएगी जब कॉन्फिडेंट हो गए लक्ष्य के लिए। उसको कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति, भगवान को समझना। तो इसलिए प्रयास चाहिए होता है कृपा के स्वरूप को समझने के लिए, और कृपा के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो चीज हमें कृपा को छुड़वा देंगी, उनसे अपने आप को बचाने के लिए। तो एक कारण है प्रयास करने के लिए जरूरी है। प्रयास क्यों करना चाहिए कृपा होते हुए भी, चाहे भगवान सब कृपा कर रहे हैं, बट फिर भी प्रयास की जरूरत है। और दूसरा कारण ये है कि भगवान की कृपा जब भक्त अनुभव करता है कि हाँ भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, भगवान ही लेके आए हैं भक्ति में, भगवान ही भक्त दे रहे हैं, भगवान ही प्रसाद दे रहे हैं, भगवान ने शास्त्र दिए हैं, भगवान ने मुझे रखा हुआ है, भगवान ने चंद्रमा, आकाश, सूरज, अग्नि, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, भगवान ही मेरा शरीर चला रहे हैं। तो क्या हम इतने गंदे और घटिया आदमी हैं कि हम भगवान की इतनी सारी कृपा के बदले कुछ उनको दे भी नहीं? वापस भी तो उनको कुछ देना होगा। तो वापस हम किस रूप में देंगे भगवान की कृपा? कृपा कृपा का जो हम ऋण कैसे उतारेंगे? उस कृपा का ऋण उतरेगा प्रयास के रूप में। जो हम सेवा में प्रयास करेंगे उससे ऋण उतर जाए। ऋण तो वैसे नहीं उतार सकते हम भगवान का, मगर एटलीस्ट भक्त को लगेगा ही कि भगवान इतनी सारी कृपा कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ करूं। तो भगवान की सेवा में वो प्रयास करता है, अपने नियम, भक्ति के नियमों को पालन करने में पूरा प्रयास करता है।
भगवान को समझने के लिए प्रयास करता है, वो प्रयास बढ़ाता है। जैसे भगवान प्रयास कर रहे हैं हमें उनके पास लाने के लिए, ऐसे ही भक्त भी प्रयास करता है सेवा में उनका ऋण चुकाने। तो इसलिए भी प्रयास किया जाता है। इसको बोलते हैं सस्टेन्ड रेसिप्रोकल एफर्ट। मतलब प्रयास करते, भगवान की कृपा देख के प्रयास करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये भी भगवान कह रहे हैं गीता में, अहम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। कृष्णा कह रहे हैं कि एक भक्त ये जान कर कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ अपनी कृपा से। मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, ये जानकर वो मेरे भजन करता है, मेरी सेवा में प्रयास करता है, वो कृत्य हो जाता है। भगवद गीता 15 चैप्टर 20th वर्स, भगवान कह रहे हैं इति शास्त्रम गुह्यतमम् इदम उक्तम मया नघ। कृष्ण कह रहे हैं इदम उक्तम मया नघ। उसके बाद क्या है, इदम उक्तम मया नघ कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कह रहे हैं कि ये गुह्य शास्त्र मैंने बताया है। हाँ, या इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कह रहे हैं कि भक्त कृत्य हो जाता है भगवान की इतनी प्रगाढ़ कृपा देखकर। अब एक जेंटलमैन अगर आपके लिए कोई कुछ करे, इतना करता रहे, जन्मों जन्मों करता रहे अपनी तरफ से बिना किसी कारण के, तो अगर आप, मतलब क्या कहूँ मैं, बताओ, अगर आप बिल्कुल घटिया आदमी नहीं हो तो आपका भी मन करेगा ना उसके लिए कुछ करूं मैं। तो somebody has to mute. तो आपका भी मन करेगा कि मैं कुछ करूं। तो इसलिए एक डिवोटी का मन करता है कि वो कुछ करे, और क्या करे, सेवा करेगा वो तो ऑफ कोर्स, और क्या करेगा, मगर उस सेवा में वो प्रयास करेगा सेवा बढ़ाने। वो भगवान की कृपा देख कर इति मत्वा भजन्ते माम्, भगवान की कृपा का ऋण चुकाने के लिए प्रयास से उसको ऋण चुकाएगा, प्रयास बढ़ाता है। इसलिए भी प्रयास कर रहा हूँ यार, ठीक है। प्रयास के ये दो रोल हैं, इसलिए डिवोटी प्रयास करता रहता है। एक तो कृपा को पकड़ने के लिए, एक कृपा का ऋण चुकाने, प्रयास करता रहेगा। तो ये प्रयास है। मगर अब क्वेश्चन ये है कि कृपा और प्रयास में महत्वपूर्ण कौन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अगर कोई पूछे भी क्या इंपॉर्टेंट है, कृपा या प्रयास? हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसे डिस्कस किया। सिर्फ कृपा हो पे आप ध्यान लगाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि संसार इतना बेकार है, संसार इतना खतरनाक है, इतना टेम्पटिंग है, इतना आकर्षक है कि आप खुद ही कृपा छोड़ के संसार को पकड़। तो इसलिए कृपा भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी कोई पूछे कि नहीं, फिर भी आप बताइए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपा या प्रयास? तो हमारा उत्तर ये होगा कि भक्तों की दृष्टि में तो कृपा इंपॉर्टेंट है, और भगवान की दृष्टि में प्रयास। भक्त सारा प्रयास करता है, मगर क्रेडिट किसको देता है? कृपा को। और भगवान सारी कृपा देते हैं, मगर क्रेडिट किसको देते हैं? भक्तों के प्रयास। तो अगर आप रियली में हमारे पीछे पड़ जाएं कि कृपा और प्रयास में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम तो इस तरह कहेंगे कि भगवान की दृष्टि में तो भक्तों का प्रयास इंपॉर्टेंट है, भक्तों की दृष्टि में भगवान की कृपा इंपॉर्टेंट। और भक्ति तो मतलब भगवान और भक्त दोनों, सिर्फ भक्त और भगवान तो होते नहीं। इसीलिए भक्ति में दोनों प्रयास और कृपा आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, भगवान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से। तो इस तरह से हम इसका समन्वय कर सकते हैं, इस तरह से हम हार्मोनाइज कर सकते हैं। बट तो यूं समझ लीजिए कि कृपा और प्रयास एक तरह से गाड़ी के दो पहिए हैं। तो एक पहिए पे तो चलेगी नहीं गाड़ी, गिर जाएगी। दोनों पहिए चाहिए, तो एक कृपा है, एक प्रयास है, तब गाड़ी चलेगी। मगर अगर आप एक और दृष्टिकोण से देखें
ये तो चलो एक दृष्टिकोण हो गया। एक और दृष्टिकोण से हमसे पूछें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, ना कृपा इंपॉर्टेंट है ना प्रयास इंपॉर्टेंट। कहोगे ये क्या हो गया अचानक से, अभी तो कह रहे थे दोनों इंपॉर्टेंट है। वेल, ये महाप्रभु की फिलॉसफी है। हमारे आपसे दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर हमारे आपसे दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो कैसे है? दोनों ही ना कृपा इंपॉर्टेंट है ना प्रयास, क्योंकि भाई कृपा तो एक कृपा एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक कृपा और एक प्रयास, दो पहिए हैं, तो दोनों पहियों पे गाड़ी चलेगी। मगर पहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना गाड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है हम कहाँ पहुंचेंगे। अगर आप तीर चला रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट है, धनुष इंपॉर्टेंट है या तीर इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कहाँ जाके लग रहा है। अगर आपने तीर चलाया, आपने टारगेट पे नहीं लगा तो फायदा क्या। सो इसलिए कृपा और प्रयास दोनों इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है टारगेट। टारगेट क्या है, गाड़ी कहाँ पहुंचेगी, गाड़ी पहुंचेगी प्रेम तक। कृपा और प्रयास से हम प्रेम तक पहुंचे, प्रेम इंपॉर्टेंट। सो तो फिर क्या करें, फिर हम प्रयास नहीं करें या कृपा के बारे में सोचे नहीं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम प्रयास करते हैं, मगर हमें पता है कि मगर प्रयास का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इतना प्रयास करूं। हम कृपा देखते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, मगर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कृपा के योग्य हूँ, कि भगवान मुझे कृपा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं योग्य हूँ, मैं प्रयास कर नहीं। क्योंकि अगर आप पे पूर्ण कृपा भी है और पूर्ण प्रयास भी है और अगर प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो दोनों ही बेकार। और चैतन्य भागवत में आता है फायदा, चैतन्य भागवत में नंददास ठाकुर कह रहे हैं तो सची माँ के बारे में कि वैष्णवेर सची, एक्चुअली चैतन्य भागवत में मध्य खंड के 22वें अध्याय के 8वें श्लोक नंददास ठाकुर कह रहे हैं कि सची माँ ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था। और क्या अपराध किया था कि सच की एक्चुअली चैतन्य बाबू के जो बड़े भाई है विश्वरूप, वो अद्वैत आचार्य के संग करते 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 सन्यासी बन गए। सची माँ को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने अपने हृदय में सोच लिया कि अद्वैत आचार्य तो बहुत गंदा आदमी, इसने मेरे पुत्र को छीन लिया, मगर किसी को बोला नहीं। और जब जब निमाय विश्वम्भर निमाय बड़े हो गए तो वो भी संग करने लगे अद्वैत आचार्य को। सची माँ ने सोचा कि तो मेरे दूसरे बेटे को भी ले लेगा। तब सची माँ ओपनली बोलने लगी, ये अद्वैत नहीं है तो द्वैत है, ये तो कपटी है और ये मेरे दूसरे बच्चे को भी ले, ये क्रूर है, ये कृपा कृपा की क्या बात करता, भक्ति की बात करता। वो लिमिट था प्राप्त और उसके से अपराध हो गया। तो चैतन्य वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं वैष्णवेरा ठाके जार कोई अपराध, कृष्ण कृपा होले तार प्रेम अभाव। वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि चैतन्य कि वैष्णवेरा ठाके जार, अगर वैष्णव के प्रति कभी अपराध हो गया, कृष्ण कृपा होले तू ओ, कृष्ण कृपा होले ओ, तो कृष्ण कृपा शायद आप पे हो भी, फिर भी आपको प्रेम नहीं। तो सची माँ पे तो कृपा थी कृष्ण की, सची माँ से तो भगवान ने खुद ही जन्म लिया, इससे बड़ी कृपा क्या हो, उनके घर से प्रकट हुई, बट फिर भी महाप्रभु ने कहा मैं प्रेम नहीं दूंगा क्योंकि इसने वैष्णव अपराध किया। सो सची माँ पे कृपा भी थी और प्रयास भी कर रही थी सेवा करने की, मगर प्रेम नहीं मिला। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कृपा या प्रयास? भैया प्रेम ही नहीं मिला तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, बेकार हो गए। वैष्णव अपराध कैसे, प्रेम ब्लॉक हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कृपा भी हो और प्रयास भी कर रहे हो, मगर प्रेम ना हो, वैष्णव अपराध की कंडीशन। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के अनुसार ना कृपा इंपॉर्टेंट, कृपा प्रेम दोनों इंपॉर्टेंट है, सॉरी कृपा और प्रयास दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर दूसरे दृष्टिकोण में ना कृपा इंपॉर्टेंट है ना प्रयास इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है लक्ष्य जो प्राप्त करेंगे इन दोनों के द्वारा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि
कृपा का और प्रयास का अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, दोनों ही बेकार होते हैं। अहंकार होगा तो फिर अपराध होगा, प्रश्न अपराध होगा कि मुझ पे बहुत कृपा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, वो डिवोटी देखो इतना, वो तो ज्यादा प्रयास नहीं, बेकार, तो अपराध होने लगेंगे। आप ऐसे बोलने भी लगोगे, सोचोगे क्या, फिर बोलने भी लगोगे, फिर क्रियाओं में भी आ। सो इसीलिए इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रयास या कृपा? वेल, इसकी 3 ओपिनियंस गौड़िया वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है महाप्रभु की। पहली ओपिनियन है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कृपा और प्रयास। और दूसरी ओपिनियन है कि वेल, अगर आप रियली में प्रेस करोगे, भगवान की दृष्टि में भक्त का प्रयास इंपॉर्टेंट है, भक्त की दृष्टि में भगवान की कृपा। और तीसरा दृष्टिकोण है, तीसरी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं। सो जो पहली अंडरस्टैंडिंग है दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको समझने से हम प्रयास भी करते हैं, हम कृपा भी समझते हैं, भगवान की प्रयास भी, दोनों ही मन में। दूसरा पॉइंट है कि भगवान की दृष्टि में भक्तों का प्रयास इंपॉर्टेंट है, भक्तों की दृष्टि में भगवान की कृपा इंपॉर्टेंट है। जब हम ये पॉइंट समझते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं, मगर सारा क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान की कृपा। प्रयास करते हैं क्योंकि भगवान की दृष्टि में प्रयास इंपॉर्टेंट है, भगवान को खुश करने के लिए प्रयास करते हैं। और क्योंकि हमारी दृष्टि में भगवान की कृपा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने जो क्रेडिट है, जो प्रयास करने का जो श्रेय है, वो भगवान को देते हैं। और जो तीसरी ओपिनियन है कि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझने से हमें ना प्रयास करने का अहंकार आता है, ना ये अहंकार आता है कि हम कृपा की योग्य हैं। हमें पता है भगवान की अहितु की कृपा है, हम योग्य नहीं है, भगवान फिर भी कृपा देते। जैसे बच्चा योग्य नहीं है, बच्चा ABCD लिखता है, मम्मी कहती है ABCD लिखो, बच्चा घुचुड़ करता है, फिर मम्मी कहती है अरे इतना अच्छा लिखा है। सो तीनों ओपिनियन अच्छी हैं। तो गौड़िया वैष्णव हमारे मत के अनुसार 3 ओपिनियन है और तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों से सीखने को मिलता है। तो ये है प्रयास, कृपा और उन दोनों के बीच का संबंध। सो आप लोग कुछ अब पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा, मैंने यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर रूप से आपने ये विषय वस्तु को हमें समझाया प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा ये है प्रभु कि जो कृपा आपने बताई कि जैसे भगवान की कृपा, तो वैसे ही जो हम सब देखते हैं कि वैष्णव की कृपा की भी आवश्यकता, वो कहते हैं शास्त्र में कि वैष्णव की कृपा से फिर हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर ये सिद्धांत को हम स्थापित करें, जैसे आपने बताया अभी कि भगवान की कृपा भी 2 प्रकार की, एक तो जनरल जो सबके लिए होती है सामान्य कृपा, और फिर जो रिजर्व होती है के भक्तों के लिए। तो क्या वैसे ही वैष्णव की कृपा भी, मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक गुरु की कृपा, तो उसमें भी ऐसे एक ही गुरु के कई शिष्य होते हैं, लेकिन कुछ ही शिष्य हैं जो विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, क्या ये सिद्धांत वहां पर भी लागू होता है इस प्रकार से? ये वहां पे सेम, एग्जैक्टली सेम लागू होता है। सेम जो गुरु होते हैं, हाँ, उनकी समान कृपा होती है, सबको प्रसाद बांटते हैं, सबको लड्डू देते हैं, सबको माला देते हैं आशीर्वाद ही सबको देते हैं। बट कुछ डिवोटीज के लिए स्पेशल कृपा रिजर्व्ड होती है, जो कि ये भजंती तू माम भक्त्या, जो कि जिनमें इच्छा होती है स्पेशल, जो गुरु की और प्रगाढ़ सेवा करने के लिए, तो गुरु फिर स्पेशल सेवा कृपा रिजर्व करते हैं और फिर उनको और हायर सर्विसेज में एंगेज भी करता है। देख, तो सेम, एग्जैक्टली सेम अप्लाई होता है, सेम वहां पे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो गुरु हैं, कुछ डिवोटीज को एक कुछ हायर सर्विसेज देते हैं, कुछ डिवोटीज को कोई स्पेशल सर्विस कुछ अपॉइंट कर देते हैं, कुछ डिवोटीज को नहीं भी करते। तो वो कैसे करते हैं? वो कुछ को कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे। क्या वो पार्शियल है? नहीं, पार्शियल नहीं है। ये भजंती तू माम भक्त्या, जो डिवोटीज सेवा करते हैं और जो डिवोटीज सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गुरु देखते हैं यस, और उसको फिर और स्पेशल सर्विसेज देते हैं। कुछ डिवोटीज हैं जो सेवा, हो सकता है उनमें इतनी इच्छा नहीं हो, ठीक है चलो चल रहा है, या टाइम भी ना हो, तो फिर उनके लिए फिर स्पेशल कृपा फिर रिजर्व नहीं होती। फिर
वो जनरल कृपा में चलते हैं और फिर धीरे धीरे एडवांस करते करते जब उनकी भी इच्छा प्रगाढ़ हो जाएगी तो भगवान अपने आप गुरु के थ्रू फिर उनको एक स्पेशल सर्विस में एंगेज कर देंगे थ्रू गुरु जो भी है, इफ दे फॉर्चुनेट इनफ। ऐसे जी प्रभु। तो प्रभु यहाँ पर व्यवहारिक रूप से इसको समझने के लिए प्रभु, जैसे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाराज संघ में जो शिष्यगण हैं वो उनको गुरु का बहुत संपर्क नहीं मिल पाता है और हाँ, उनके वो वाणी की सेवा वो करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर भी है वो सुन करके और वो यथारूप पालन करने का प्रयास करते हैं। तो उस दृष्टिकोण में कैसे समझ सकते हैं हम, जहाँ पर कि जैसे आपने बताया कि उनको सेवा में युक्त कर रहे हैं शिष्यों को, विशेष वो रूप तो से चलो या कंटिन्यू करिए। प्रभु विशेष रूप से हम देखते हैं कि वही शिष्य को साक्षात निर्देशन मिल पाता है सेवा में होने के लिए जो गुरु के आसपास में समीप में, जिनको बप्पू की भी सेवा करने का अवसर पास में है, उनके पास में जानते हैं। तो नहीं ऐसे नहीं व्यवहारिक वैसे दृष्टिकोण में नहीं ऐसा है नहीं, क्योंकि एक पर्सनल सर्वेंट बनना और एक विशेष सर्विस करना आप को अलग दो पॉइंट है। तो पर्सनल सर्वेंट तो चलो साथ में होते हैं तो पर्सनल सर्विस करते हैं, मगर विशेष सर्विस तो इवन जो गृहस्थ हैं, इवन जो दूर रहते हैं डिवोटीज, उनको भी मिल जाती है। जैसे शिला प्रभुपाद कोई भक्ति सांता सरस्वती ठाकुर के पास तो रहे नहीं कभी, और उनके जो पास थे डिवोटीज, इतने स्टॉलवर्ड डिवोटीज, उनको उतनी स्पेशल सर्विस नहीं मिली जितनी प्रभुपाद को मिल गई, और अपने आप ही अरेंज हो गया, भगवान ने अरेंज कर दिया। और गुरु के थ्रू इंस्पायर भी कर दिया, थ्रू जो भी है, थ्रू ड्रीम, जैसे भी है, मतलब थ्रू इनडायरेक्टली थ्रू प्रभुपाद को इंडिकेशन नहीं मिल गई कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ये चाहते हैं और उन्होंने परस्यू कर दिया। सो उसी प्रकार हमारे मूवमेंट में भी कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके दुबई, आपके कुवैत या कतार में, मिडल ईस्ट में भक्ति वृक्षा चल रहा है, तो कई गृहस्था डिसाइपल्स लीड कर रहे हैं, भक्ति वृक्षा हेड हैं, लीडर्स हैं, और कई जो गुरु के साथ हैं वो इतनी स्पेशल सर्विस नहीं कर पा रहे। तो स्पेशल सर्विस किसके पास आएगी और किसके पास नहीं आएगी, वो साथ रहने से डिसाइड नहीं होगा, वो है कितनी इंटेंसिटी आपकी सर्विस करने की। तो भगवान अपने आप ही गुरु को इंस्पायर करेंगे और आपको स्पेशल सर्विस में एंगेज करवा देंगे। वो तो आपकी डिजायर, भगवान तो वेट कर रहे हैं, आपकी डिजायर देख रहे हैं, बस जीव इच्छा मात्र करिए। और फिर भगवान के लिए कोई बैरियर्स थोड़े ना है, भगवान के लिए टाइम स्पेस की कोई लिमिट ही नहीं है। भगवान कहीं भी किसी को भी इंस्पायर करके गुरु के थ्रू किसी भी तरह प्लान बना के, आपको समझ भी नहीं आएगा और आप गुरु के थ्रू एंगेज हो जाओगे स्पेशल सर्विस में, अपने आप हो जाओगे। सो आई थिंक दैट्स वो सही प्रिंसिपल है। पास रहने तो गुरु के पास इतने सारे डिवोटीज रहते भी हैं और उनको पढ़न भी आता है, और मतलब पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं मगर कोई डिवोशनल स्टैंडर्ड नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं, और पढ़े रहते हैं, ऐसा भी है। सो उससे फर्क नहीं पड़ता, डिजायर से फर्क पड़ता, और फिर अपने आप अरेंजमेंट्स। थैंक यू प्रभु। प्रभु एक फॉलोअप क्वेश्चन और है प्रभु जी कि तो जैसे आपने बताया कि भगवान से भी हमें वो विशेष कृपा के लिए याचना करनी होती है, वो अपने आप नहीं आती। हाँ, तो क्या वैसे हमें भी आध्यात्मिक गुरु या वैष्णव से ऐसे कैसे हम याचना प्रार्थना कर सकते हैं वो विशेष कृपा को आकर्षित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए? हाँ, वो तो भी वो विशेष कृपा जो रिजर्व्ड है, जो मांगनी पड़ती है, उसमें प्रेम है, आसक्ति है, और फिर उसके बाद भगवान खुद है। तो ऐसे ही वैष्णवों के पास, वैष्णव अपनी तरफ से भी विशेष कृपा देते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हमें कुछ कृपा तो मांगनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें वैष्णवों से हम बोल सकते हैं कि आप प्लीज हमें गाइड कीजिए और हमें अपने दोष बताइए। तो वैष्णव बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे, वैसे कैसे बताएंगे आप? तो मगर अगर हम प्रे करेंगे, आप बताइए, वो रिजर्व्ड है कृपा, वो उन्होंने रखी हुई है अपने पास, मगर जो बोलेगा उसी को बोलेंगे। वरना तो अगर किसी को कोई आप ऐसे ही दोष बताते रहेंगे, सब हर्ट ही हो जाएंगे, कोई सुनना थोड़ा ना चाहे। अगर कोई आप बोलोगे प्लीज प्रभु जी मुझे अपने दोष बताइए, मैं आगे बढ़ना आता हूँ, अगर यस ठीक है, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की है, मैं सर्विस करूंगा, वो बताएंगे, तो आप एडवांस कर सकते हो उसमें। So, कुछ रिजर्व्ड होती है कृपा जो मांगने पर ही वैष्णव देता है, अदरवाइज आप नहीं मांगोगे, वो दोष क्यों बताएगा? वो तो कहेगा, उसको भी लगेगा चलो मैं गुरु भी हूँ, बट फिर भी गुरु तो अपने आप को सेवा की समझता है, वो कहेगा मैं दोष ही बताता रहूंगा, इसकी भक्ति खराब होगी, पता नहीं ये आदमी कितना सेंसिटिव है, नहीं है, ऑफेंसिव मेंटालिटी ना हो जाए। सो दैट्स वन थिंग, हम वैष्णवों से मांग सकते हैं, जो मांगने पर ही वो दे।
या फॉर एग्जाम्पल हम लोग वैष्णवों से कह सकते हैं कि आप प्लीज हमें गाइड करिए, हमेशा हमें एडवाइस कीजिए, हमें वार्न कीजिए जब भी मैं गलती कर रहा हूँ, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो कहेंगे ठीक है, तो ये भी वो मांगने पे ही देंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे गाइड किए तो वैष्णव थोड़े ना किसी को गाइड करेगा, वो अपने आप को कोई मास्टर थोड़े ना समझता है। सो ये सारी चीजें हमें वैष्णव से मांगनी चाहिए। ये भी रिजर्व होती है, जो मांगने पर ही देता है एक वैष्णव, वरना नहीं देगा वो, लाइक दैट। या जैसे भागवतम में महाप्रसाद, नारद मुनि ने मांगा तभी तो दिया महाभागवतम ने महाप्रसाद, अदरवाइज वो नहीं देते कि भैया हम नहीं दे रहे। तो वो कुछ कृपा होती है जो रिजर्व है, जो मांगने में मिलती है। कुछ कृपा होती है वो बिना मांगे भी दे देते हैं वैष्णव, जो कि रिजर्व्ड है मगर बिना मांगे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स दे देंगे। हाँ भी सुनेंगे डिवोटी को ये प्रॉब्लम्स है, अपनी तरफ से कहेंगे ठीक है चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जाओ कोई प्रॉब्लम। तो वो अपने मन से, मगर ये चीजें मांगनी पड़ती है, वे वैष्णव केस में। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर रूप से आपने हमारे जिज्ञासा को उत्तर दिया प्रभु जी, और निश्चित रूप से बहुत ही हमें लाभ देंगे प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद। आपने बहुत सुंदर रूप से ये जो हमें आज जो इस प्रकार से समझने का अवसर प्राप्त हुआ, वो कुछ समझ थी, कृपा और प्रयास की, परंतु आज हमें एक नए रूप में बहुत सुंदर रूप से समझने को मिला। प्रभु जी, प्रश्न है कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो हमारे को मुख्यतः वैष्णवों से कृपा याचना करने में बीच में आ जाता है, तो इससे हम किस प्रकार से निपटें? या you're right, ये तो प्रॉब्लम तो है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम खुद अपने लिए। इसलिए एक चाइनीज सेइंग है, प्रोवर्ब है चाइनीज स्पिरिचुअलिटी में कि कि अगर आप भगवान के पास पहुंचना चाहते हो तो अपने आप को रास्ते से हटा दो। सो प्रॉब्लम वही है हमारा, हम, और हम मतलब हमारा अहंकार, हम मतलब मैं नहीं, हम कहते हैं हम महान है। सो क्या करें फिर, सॉल्यूशन क्या है? दैट्स द क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है? कृपा याचना करने में मिथ्या अहंकार आता है कैसे? वेल, सिंपल सी बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर गोल फिक्स्ड है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गोल द माइंड इज फ्रस्ट्रेटेड। प्रभुपाद भगवद गीता में लिख रहे हैं प्रॉपर, आई थिंक उसमें लिख रहे हैं, शाम तुंद कथा पापा में जन पुण्य कर्मणाम ते शाम तुंद विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़, शायद उसमें लिख रहा है। ओ नहीं ओ सो एक्चुअली वो वाला श्लोक है, अब शायद में का बुद्धि एका गुरु नंदना, उस वाले श्लोक में लिख रहे हैं भगवद गीता के। प्रभुपाद बापट में लिख रहे हैं कि बिकॉज लैक ऑफ गोल माइंड इज फ्रस्ट्रेटेड। जब गोल क्लियर होगा तो आप अपने आप को हटा दोगे, अहंकार को हटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको बोले कि आपको $3 बिलियन मिलने वाले, $3 बिलियन मिल जाएंगे, बस आपको एक काम करना है, आपको सबके पैर छूने। आप कहोगे भाई बाद में क्या, मैं पैर क्या, मैं अपनी नाक भी रगड़ दूंगा। आप नाक भी रगड़ने को तैयार हो गए। आप कहोगे छूना क्या, मैं उसके पैर चाट लूं क्या? चाट भी लोगे, क्योंकि $3 बिलियन मिल रहे हैं भाई। तो $3 बिलियन अपने आप ही आपको सब कुछ करा देगा बिना संकोच के, क्योंकि आपको पता है $3 बिलियन की वैल्यू क्या है। उसी प्रकार अगर हमें लक्ष्य क्लियर होगा कि हमें प्रेम मिल रहा है, भगवान ही मिल रहे हैं, और अगर भगवान की वैल्यू पता है और प्रेम की वैल्यू पता है, तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। अहंकार तो बहुत छोटी चीज है। आप कहोगे भाड़ में जाए अहंकार, मैं सबसे पूछूंगा, याचना करूंगा, मुझे तो प्रेम चाहिए किसी भी कीमत। आप कुछ भी करो मेरे साथ, आप मुझे मारो, आप मुझे पनिश करो, आप मेरे लिए सब छीन लो, मुझे तो भाई प्रेम दे दो। अगर आप गोल समझते हो, सो दैट्स द होल पॉइंट। हमारा अहंकार तभी बीच में आता है जब प्रयोजन क्लियर नहीं, जब गोल क्लियर नहीं हमारा, या हम कन्विंस नहीं है कि गोल वैल्यूएबल नहीं। दो चीजें हमें पता भी है मगर हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। मतलब आई मीन टू से हम उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स
हमें वो इतना वैल्यू, ठीक है भगवान वैल्यूएबल है मगर इतने वैल्यूएबल नहीं, लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल है, या मेरी लाइफ भी वैल्यूएबल है, भगवान थोड़े से ज्यादा वैल्यू, नो, भगवान की तभी तो भागवत है, तभी तो कहते हैं कि तभी सिद्धांत समझना होता है, उससे भगवान की वैल्यू, गोल फिक्स होता है, जैसे जैसे गोल में कन्विंस होते जाओगे वैसे वैसे आप अपने रास्ते से सब कुछ हटा दोगे, अपने आप को भी हटा दोगे, कहोगे अब बहुत हो गया, मैं कुछ भी करने को तैयार। सो तरीका ये है। सो द पॉइंट इज आप अपने गोल को क्लियर करो, उसमें कन्विंस हो। अगर अगर तो अगर मान लीजिए प्रॉब्लम, अगर मिथ्या अहंकार हमारा बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेल मैं क्या करूं, मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं ये है वो है, मुझसे नहीं हो रहा। नो नो, सॉल्यूशन ये है अपना, इसका मतलब है आपको भी भगवान के बारे में और जानो, प्रेम का स्वरूप समझो, प्रेम क्या है, जो आप पहले मतलब हम लोग जो भी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग टू यू बट आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी, जो हम प्रेम समझे, प्रेम चीज क्या है, प्रेम की डेफिनेशन क्या है, प्रेम की वैल्यू क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। जैसे जैसे हमें अपना गोल समझ आने लगेगा, उसकी वैल्यू समझ आने लगेगी, उसकी नॉलेज लेकर, दैट्स अ होल आइडिया, डिवोटीज का डिस्कस करके, वैसे वैसे बहुत आसान हो जाएगा ये सारी चीजें हटाना। भक्ति का प्रोसेस, सो भक्ति का प्रोसेस भक्ति से ही आता है। सो ऐसा नहीं है कि आप हम पहले मिथ्या अहंकार हटाएंगे फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं होगा। आप मतलब हम टेम्पररी एडजस्ट करके नहीं हटा पाएंगे, एडजस्टमेंट से नहीं होगा, हमें प्रयोजन समझना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रेम, राग, अनुराग, ये क्या चीजें, आई मीन टू से वेरी फ्यू डिवोटीज वो डिफाइन ही नहीं कर पाते, प्रेम को डिफाइन नहीं कर पाते, प्रेम की परिभाषा क्या है। बहुत कम डिवोटीज हैं जो कि प्रेम की परिभाषा ही डिफाइन नहीं कर पाते। मैं तो कितने पूरे वर्ल्ड में पूछ चुका हूँ लोगों से, जब प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता तो प्रेम प्राप्त करने का मन क्यों करेगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि सेवा कृति साधे भवेत साधे भावा, जो साधना बिना लक्ष्य को समझे की जाती है, उस साधना का फल नहीं आता। सो हम सेवा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, क्यों, हमें प्रेम चाहिए, बट प्रेम हमें पता ही नहीं क्या है। एक जनरल पता है, जनरल इधर उधर पता है, बट प्रेम प्रेम क्या है, प्रेम की चाल क्या है, प्रेम के कंपोनेंट्स क्या है, प्रेम कैसे एक्ट करता है हार्ट में, कैसे डिवोटीज को जो कराता है, प्रेम कराता है। सो ये सारे डिस्कशन चैतन्य चरितामृत में, तभी तो चैतन्य चरितामृत है, पीएचडी है ना, प्रेम प्रेम के बारे में डिस्कशन। गीता में शरणागति के बारे में डिस्कशन, कृष्ण के बारे में डिस्कशन है, कृष्ण कौन है। भागवतम में शरणागति के बारे में डिस्कशन है डिटेल में कि शरण कैसे लेनी, और चैतन्य चरितामृत में प्रेम, शरण लेके आप कहाँ पहुंचोगे, प्रेम तक। नाउ लेट्स डिस्कस प्रेम। सो दैट अगर ऐसा हो रहा है तो देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कन्विक्शन, तो हम वो बढ़ाएंगे तो अपने आप बहुत आसान होता है बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स ऑल। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Prabhu, my question is there a correlation between effort and mercy? As in, I do a lot of effort and then I will get a lot of mercy, or is there a way that you can optimize for effort to get maximum mercy? हिंदी में आंसर दो ना। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि हिंदी में पूछूं, तो मैंने अंग्रेजी मगर में हिंदी में पूछा। बोल दो ना, हिंदी समझ तो लोगे ना, है ना। हाँ, मैं तो समझता हूँ प्रभु जी। हाँ बस ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कि हम प्रयास करेंगे तो कृपा मिलेगी, मतलब हम प्रयास करके कृपा कृपा प्रयास करेंगे तो कृपा मिलेगी डेफिनेटली। कृपा को पकड़ के रखना पड़ेगा, तो कृपा को पकड़ के रखेंगे तो और कृपा मिलेगी, है नहीं, छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगी। सो क्या वो पूछने का कोई तरीका है कि हम कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त कर लें, यही पूछ रहे हो ना। हाँ प्रभु जी, मुझे ये है जानना ना। था कि अगर एक कोरिलेशन है क्या, अगर प्रयास और कृपा में, तो ऐसा है कि एक भक्त जो ज्यादा प्रयास करता है उसी को ज्यादा कृपा मिलता है, या फिर वेल ऑप्टिमाइज नहीं नहीं नहीं, ये कोई भक्त ज्यादा प्रयास करेगा तो उसको ज्यादा कृपा मिलेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है।
क्योंकि उस पे भी डिपेंड करता है कि उसका भाव क्या है प्रयास के पीछे। अगर वो प्रयास कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं मेरे प्रयास से मुझे कृपा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ये भी बात है। सो जो जो मैंने बताया कि कुछ कृपा भगवान मांगने पे देते हैं, नहीं? जैसे प्रेम और अपने आप को खुद, तो उसके लिए हमें भगवान से मांगना तो पड़ेगा और उस मांगने के लिए प्रयास करना पड़ता है। भगवान से मांगना ही एक तरह से प्रयास है कि भगवान प्लीज मुझे दे दीजिए। और भगवान से हम मांगेंगे भगवान मुझे प्रेम दीजिए, अपने आप को दीजिए, तो सिर्फ बोलने से तो नहीं कुछ होगा, उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। भगवान कहेंगे तू तो बोल ही रहा है कि भी तो मुझे प्रेम चाहिए, मैं चाहिए, तो तेरे एक्शंस, तेरी क्रियाओं में तो नजर नहीं आ रहा। तो वो क्रियाओं में सेवा के रूप में हम प्रयास दिखाते हैं कि भगवान हमें चाहिए आपका प्रेम। सो इसलिए प्रयास हमें करना पड़ता है वो भगवान से मांगने के लिए, वो दिखाने के लिए कि भगवान हम चाहते हैं आपको, हम संसार को नहीं चाहते। तो वो दिखाना वो उसमें प्रयास लगेगा, भगवान हम आपको चाहते हैं, संसार को नहीं चाहते। ठीक है, हम आपको चाहते हैं, संसार को नहीं आते और हम कर रहे हैं भोग। तो भगवान कहेंगे भई तू बोल ही रहा है मुझे चाहता है, मगर करके दिखा रहा है कि संसार को चाहता है। तो प्रयास करना पड़ेगा ना भोग छोड़ने के लिए, भगवान को प्रूव करने के लिए, भगवान वो जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, केवल मुँह से। सो उसमें प्रयास लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा कृपा मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। प्रयास तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रेम और भगवान नहीं मिलेंगे बिना प्रयास के। भोग छोड़ने के लिए प्रयास करना, और जैसे मैंने बताया था कि रास्ते में जो कंकड़ पत्थर हटाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा आपको, है नहीं? वरना गाड़ी चलेगी नहीं तेज़। सो बट उसके पीछे भाव भी इम्पोर्टेंट। सो अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हमें लगा कि मैंने बहुत प्रयास किया, कृपा नहीं मिली, क्योंकि आपको अपने प्रयास का अहंकार। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम सोचेंगे कि केवल प्रयास से भगवान की कृपा मिल जाएगी, मेरे प्रयास से, केवल प्रयास से कृपा मिल जाएगी, तब भी नहीं मिलेगी। केवल प्रयास से नहीं मिलती कृपा, दूसरे वैष्णवों की मदद भी चाहिए उसमें। वैष्णवों का भी रोल है, केवल आपका प्रयास नहीं, वैष्णवों को भी प्रयास है उसके अंदर, आपको ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि वैष्णव का प्रयास नहीं होगा तो आप भी प्रयास नहीं कर पाओगे, अगर उनकी एसोसिएशन नहीं होगी तो उनको भी क्रेडिट जाता है। तो इसलिए भाव पे डिपेंड करेगा। तो अब कितने प्रयास करने पे कितनी कृपा मिलती है, तभी वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाव पे भी डिपेंड करता है। वो भगवान खुद जानते हैं किसको कब क्या देना है, कैसे देना है। और ये भी हो सकता है आप पूरा प्रयास कर लो और आप कृपा के योग्य हो, फिर भी भगवान नहीं दे। फिर भी मतलब आप एक ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच गए, जो भी भगवान की नजर में जो भी है, और फिर भी भगवान कृपा नहीं दे। हो सकता है कि भगवान चाहते हो कि ये भक्त और प्रयास करे। कभी-कभी भगवान पूरा प्रयास होने पे भी कृपा नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि भगवान वेट करते हैं। क्योंकि भगवान कृपा दे देंगे तो फिर आप प्रयास करना बंद कर दोगे। इसलिए भगवान कृपा नहीं देते। भगवान कहते हैं इसको प्रयास करने दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा भक्त प्रयास करता है। मैं बड़ा खुश हूँ कि जब प्रयास करे, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है अपने भक्तों का प्रयास देखने में। तो भगवान कहते हैं, "भई कृपा थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, नहीं देता, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है इसको प्रयास करने में।" जैसे कभी-कभी तो छोटा बच्चा तो म जो छो अ, तो जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, तो मम्मी-पापा कहते हैं, बेटे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।" तो वो धीरे-धीरे चल के गिरते आता है। तो कहते हैं, "बेटे इधर आओ, कम, 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 कम बेबी।" तो वो आते हैं, तो मम्मी-पापा उसको गोदी में नहीं उठाते, पीछे हो जाते हैं। फिर कहते हैं, "कम, कम, कम", फिर पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है जब वो प्रयास कर रहा होता है, गिर रहा होता है, खड़ा हो रहा होता है, पेरेंट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हो सकता है भगवान कृपा ना दें, पूरी प्रयास करने में भी, क्योंकि भगवान को आनंद आ रहा हो। सो भगवान के पास बहुत सारे फैक्टर्स और रूल्स हैं, जो हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पाएँगे। इसलिए हमारा रोल तो ये है कि हम अपना प्रयास करते रहें, जितना है अपना प्रयास बढ़ाते रहें अपनी तरफ से, और सही भाव के साथ, और फिर भगवान पे छोड़ दें। और अगर फिर भी कृपा नहीं मिले, तो भी फिर भी भगवान का प्रेम नहीं मिला, भगवान नहीं मिले, तब भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब भी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमारे लिए बेस्ट ही कर रहे हैं। हमें कृपा ना दे के भी हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं।
वही हमारे लिए बेस्ट है। हो सकता है भगवान अपने माइंड में सोच रहे हैं इसको मैं कृपा दे दूंगा तो ये प्रयास छोड़ देगा, लेजी बन जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, तो अभी इसके लिए ठीक नहीं। सो इसलिए अपना काम करें हम, बाकी प्रयास करने का काम हम करें, कृपा करने का काम भगवान पे छोड़ और करते रहो बस, बिना किसी रियल एक्सपेक्टेशन के। हाँ, इस होप के साथ कि हमें एक दिन प्रेम मिलेगा, भगवान जरूर देंगे, हमें चाहिए, मगर नहीं भी दें तो भी हम सेवा करते रहेंगे और भगवान खुश होंगे तो भगवान ऐसे इस तरह से डिवोटी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर answer दिया आपने। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसी अभी जो आपने बताया प्रभु जी, इस पे मेरा छोटा सा मुझे एक प्रश्न आया था प्रभु जी कि आपने बताया जब भगवान कृपा करेंगे तो हो सकता है उनके मन में विचार है कि ये व्यक्ति अहंकारी हो सकता है या अभी कृपा नहीं करेंगे, रोकेंगे। प्रभु जी इस प्रकार से कैसे समझे, जब भगवान की कृपा मिल गई तो उस समय हमारे हृदय में फिर से कुछ अहंकार आ सकता है, इस बात को हम कैसे समझे प्रभु जी? मैं बताऊं, वो हम नहीं समझ पाएंगे। कुछ चीजें ना ह्यूमन के बियॉन्ड है, कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। अब वो हम कैसे समझेंगे, अगर कृपा मिल जाएगी तो अहंकार आ जाएगा तो क्या करें, वो सब हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, सो वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो टू सर्टेन एक्सटेंट, बट ये है कि एक तरीके से जरूर समझ सकते हैं हम, और भगवान समझा भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा होल्ड ही करके रखेंगे और तो बिना किसी इंडिकेशन दिए कि मैंने होल्ड किया हुआ है और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। भगवान होल्ड करके रखेंगे मगर भगवान इंडिकेशन देंगे, देखो तुम अभी अधिकारी नहीं हो। कैसे? भगवान थोड़ी सी कृपा देंगे, और जब कृपा देंगे तो फिर आप अपनी साधना में लेजी हो जाओ। जैसे उदाहरण के लिए हम चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग में हमें बहुत जब आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर चैंटिंग हम इतनी सीरियसली नहीं करते, फिर ढीली करते हैं और फिर फॉल डाउन हो जाते हैं। और जैसे फॉल डाउन होता है तो फिर एकदम सीरियस हो जाते हैं, अरे यार चैंटिंग करनी है, मेरा फॉल डाउन हो गया, तब मूड सीरियस होता है, यस करना है मुझे अच्छी तरह, सेंस कंट्रोल करना है अब दोबारा से, तो फिर से हम करना शुरू करते हैं। फिर कृपा मिलती है, हमें आनंद आता है, मन शांत होता है, फिर चैंटिंग हम थोड़ा लूज करते हैं, अंदर से मूड भी लूज हो जाता है, सीरियसनेस, रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर भोग भोग में फंस के फिर से फॉल डाउन आता है। तो भगवान इंडिकेशन दे रहे होते हैं, भगवान दिखा देते हैं हमें। तो जब साधना करते करते, जब आप अच्छी तरह साधना करते और आपको आनंद भी आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपका फॉल डाउन हो जाए, इसका मतलब है कि अभी आप कृपा के अधिकारी नहीं हो, पूर्ण कृपा। अभी भगवान आप रोक के रखेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भक्ति साधक सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ड्यू टू लोगों का फॉल डाउन क्यों होता है साधना, अब बेस्ट अच्छी तरह साधना करते करते भी फॉल डाउन आता है, क्यों? क्योंकि उस साधना का अहंकार आ जाता है, और साधना के अहंकार से क्या होता है, उसका फॉल डाउन होता है, रिजल्ट ही है। तो इसलिए भगवान इंडिकेशन दे देंगे, अगर फॉल डाउन हो रहा है, माइंड आउट हो रहा है, सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, सब कुछ सही करते हुए भी, इसका मतलब अभी आप पूर्ण कृपा के अधिकारी नहीं हो, अभी अपने आप को और आपको स्ट्रॉन्ग करना है, प्योर करना है, तब भगवान। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस इंडिकेशन से। धन्यवाद प्रभु जी। यशोमती प्रभु, like to say something, प्रभु? कृष्ण धन्यवाद प्रभु। नहीं प्रभु, यदि भक्तों के प्रश्न ले सकते हैं हम लोग, और भक्तों की जिज्ञासा होगी तो। क्या हो रहा है? और कोई प्रश्न किसी का है? कोई भक्त अपने? तो फिर प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर रूप से और अपने बहुत व्यस्त समय से प्रभु जी ने समय निकाल करके हम सबको इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मार्गदर्शन किया हम सबका, और हम सब ने देखा कि हम सभी भक्तों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु था ये समझना कि किस प्रकार से प्रयास और जो कृपा का समन्वय बना के हमको भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना है। तो हम सब चाहते थे कि प्रभु जी यहाँ पर मार्च में आए, पिछले मार्च में आने का प्रोग्राम था प्रभु जी का यहाँ पर गौर पूर्णिमा के उत्सव पर।
लेकिन हम सब फिर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे एंड रिक्वेस्ट प्रभु दैट डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर like to have Prabhuji presence here so that we can have a week seminar, not 1 day, 2 day. Probably we can Yeah. plan for a week That and we will can be learn great. so many things from Prabhu. So thank you, Prabhu. In spite of your busy schedule, you could get some time for us, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. और हम- Srila Prabhupada की